Good afternoon, guys. I'm Mohammad Rashad, HSC trainer in Dynamic Institutional Skill Development. Yes, today I have with my new topic, that is this is the safety profession. What is the safety profession? Yes, that is true. I'm coming here with after a long time, but due to some my busy schedule, I was unable to make a video. But today, this is a very this video is going to very interesting and very demanding video. Why? What is the safety profession? Everybody asks, what is the safety profession? So let us start know about that. What is the safety profession? So first, the primary focus for the safety profession is prevention of harm to people, property, and the environment. Safety professionals applying principles drawn from the such disciplines as engineering, education, psychology, enforcement, hygiene, health, physics, and management. Simply, the safety professional guys, the people who need to focus to stop prevent the accidents and minimize the accidents, applying the engineering control, administrative control, and yes, of course, applying the PPs. And for that, सेफ्टी प्रोफेशनल में बहुत सारे स्ट्रीम डिसिप्लिन स्ट्रीम होने चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इन्फोर्समेंट, हाइजीन, हेल्थ, फिजिक्स एंड मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। अगर उस सेफ्टी प्रोफेशनल को प्रॉपर्टी को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, वर्कर्स को बचाना है या मशीनरी को बचाना है, इसीलिए मैं कहता हूँ एक सेफ्टी प्रोफेशनल का ड्यूटी होता है to stop the accident for 3 ME. First, machine safety; second, material safety; second ME, and three, man means workers, supervisor, engineer, manager, जो भी वहाँ पर है, and then environment safety, that is 3 ME. बट इन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए, इन सबको सेव करने के लिए हमारे पास कुछ नॉलेज होने चाहिए, और वो नॉलेज किसी एक फील्ड से नहीं, अलग अलग फील्ड से है। वो इंजीनियरिंग फील्ड से है, एजुकेशन फील्ड से है, साइकोलॉजी की फील्ड से, इन्फोर्समेंट फील्ड से, हाइजीन फील्ड से, हेल्थ फील्ड से, फिजिक्स एंड मैनेजमेंट फील्ड से है। सो इन सबको मिलाकर जिसके पास इन्फॉर्मेशन था वो सेफ्टी प्रोफेशनल कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, द यूज एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर लॉस प्रिवेंशन एंड लॉस कंट्रोल। सो इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, लॉस को कंट्रोल करने के लिए, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमें एक साइंस की जरूरत है, दैट इज सेफ्टी साइंस। Yes, safety science is a 21st century term for everything that goes into the prevention of accident, illness, fire, explosion, and other events which harm people, property, and the environment. So safety science में हमें इस साइंस के अकॉर्डिंग हम एक्सीडेंट्स को, इलनेस को, फायर को, एक्सप्लोजन को रोकते हैं, जो भी वो इंसिडेंट एक्सीडेंट जो हार्म करते हैं प्रॉपर्टी को, पीपल को, इन्वायरमेंट को, और ये हमें जानकारी हाउ टू स्टॉप देम, हाउ टू प्रिवेंट देम, हाउ टू एलिमिनेट देम, हाउ टू मिनिमाइज देम, ये हमें सेफ्टी साइंस से पता चलता है एक सेफ्टी प्रोफेशनल को। तो एक सेफ्टी प्रोफेशनल जिसके पास नॉलेज होता है सेफ्टी साइंस का। The term safety science may sound new, but many sources of safety science knowledge are hundreds of years old. All of the following are knowledge areas of safety science. So we have different kind of knowledge here. According to that knowledge, we can understand the people, especially who are working in a safety profession, and after getting this information into my presentation, they will feel yes, they have that knowledge already. They have the knowledge, and for new people who just want to come in this field in a safety profession, they should have that knowledge. The first knowledge is ergonomics. So ergonomics safety. So what is that ergonomics safety? So ergonomics helps people understand the performance limits of humans and helps them design task, machine, workstation, and the facility which improve performance and safety. So ergonomics states the way people carry the load and the work, and their body posture, their body movement, their tasks, machines. जो ergonomics में हमें पता चलता है कि एक जो वर्कर है वो कैसे मशीन के साथ काम करेगा, और उसकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी होगी, टास्क क्या होगा, और बॉडी रिपीटेशन क्या होगा, एंड बॉडी पोस्चर क्या होगा, ये सारे ergonomics में हमें पढ़ाया जाता है। Environmental science provides knowledge. Second, that is environmental science. So environmental science provides knowledge about pollution sources and their control, waste disposal, impact studies, environmental like heat, light,
irrigations, erosion and ecological substances. So environmental science में ये भी नॉलेज एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स के पास होता है, उन्हें चाहिए। एंड इसके अकॉर्डिंग जो पोल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशंस, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसकी इंफॉर्मेशन नॉलेज उनके पास होती है। एंड वेस्ट डिस्पोजल, एवरी मैन्युफैक्चर्स रिलीज द वेस्ट, सो उस वेस्ट को हम कैसे ट्रीट करें, उसको रीयूज करें या फिर रिसाइकिल करें, उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर क्या पड़ता है, ये सारी जानकारी एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स को होती है। नेक्स्ट that knowledge, that is chemistry and biology. So chemistry and biology also are science, and this knowledge also has to safety professionals. Chemistry and biology provides knowledge about hazardous substances. So जो भी substances साइट पर आते हैं, chemicals आते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैसेस हो, उनमें कौन से substances टॉक्सिक है, corrosive है या फिर फ्लेमेबल है, कंबस्टिबल है, एक्सप्लोजिव है, और इस सब की या फिर अल्कालीज, एसिड, इस सब की जानकारी हमें रखनी है, एज एक सेफ्टी प्रोफेशनल रखता है एक्चुअली, थ्रू द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंफॉर्मेशन नॉलेज। नेक्स्ट द नॉलेज इज physics tells people about electricity. So yes, physics, in a fifth chapter we get to know about the heat, radiation and other forms of energy that must be controlled to ensure safe use. So of course एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स के पास नॉलेज होता है कि हीट, रेडिएशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से होने वाले जो हैज़ार्ड हैं उसको कैसे रोकें, एंड उसको कैसे रोकथाम करें, एक्सीडेंट्स को कैसे ज़ीरो कन्वर्ट करें, एंड इसके लिए जो कंट्रोल मेजर्स है वो अप्लाई करता है, और इसमें फिजिक्स हेल्प करता है उसको और आसानी से समझने में। नेक्स्ट है साइकोलॉजी हेल्प, यस साइकोलॉजी नॉलेज, दैट साइकोलॉजी हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर दैट कैन लीड टू or avoid accidents. So yes, behavior based safety nowadays are very demandable just issues. Everybody wants to just train, every corporate sector wants training in behavior based safety. So psychology बताती है कि वर्कर्स, एक ही ग्रुप में वर्कर्स है जो सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स नहीं कर रहे हैं। सो वाई, इस वाई को ढूंढने में हम साइकोलॉजी काफ़ी हेल्प करता है। नाउ सो दैट इज नेक्स्ट है physiology and biomechanics and the medicines help people understand the mechanism of the injury and the illness and how to prevent them. So yes, physiology हुआ या biomechanics and medicines की इंफॉर्मेशन होती है एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स को, और वो बताता है किसी भी इंजरी के बारे में वो समझ सकता है, और उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए फर्स्ट एड में, फिर या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक सेफ्टी प्रोफेशनल आसानी से समझ जाता है इस इंफॉर्मेशन के बाद। Now next knowledge and information should keep for the safety professional, that is engineering, business management, economics and even sociology and geology give people knowledge so necessary to improve safety in our society and contribute to the productivity and profitability. It means you may understand एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स के पास कितने सारे नॉलेज है। एक सेफ्टी प्रोफेशनल के पास नॉलेज है, आपने देखा एर्गोनॉमिक्स का, इन्वायरमेंट साइंस का, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, फिजिक्स का, साइकोलॉजी का, एंड फिजियोलॉजी का, बायोमेकेनिक्स का, मेडिसिन का, इंजीनियरिंग का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, बिजनेस मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन दे बी अवेयर अबाउट हाउ टू जस्ट मैनेज द टीम, इकोनॉमिक्स, इवन सोशियोलॉजी एंड जियोलॉजी. So things that can cause or contribute to the accident, illness, fire, explosion and similar undesired events are called hazard. Yes, hazard means anything which may have a possibility to harm, that is hazard. So safety science gives people the ability to identify, evaluate and control or prevent these hazard. Safety science provides management methods for setting policy in a company. तो सेफ्टी साइंस के अकॉर्डिंग नॉलेज होने के बाद जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये फोकस करते हैं कि किसी हज़ार्ड को वो कैसे रोक सकें, एक्सीडेंट्स को कैसे रोकें, एंड या उसे मिनिमाइज करें, एलिमिनेट करें, या इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाएं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाएं, पीपीएस कौन से एप्लीकेबल होंगे, ये सारी बातें सेफ्टी साइंस में होती है। और साथ में ही हम हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को कि एक सेफ्टी पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पॉलिसी कैसे प्रिपेयर किया जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट, hazard control activities goes on every day throughout the world. Yes, of course, hazard जो होता है एवरी डे हमें मिलता है, एंड सिर्फ ये साइट पर नहीं बल्कि और ये
यस, डिफर करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइट्स, बट एक्चुअली हैज़र्ड तो सभी जगह है। सो जैसे आप बात करें, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या पेंट इंडस्ट्री हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, लेबोरेटरी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑयल एंड ड्रिलिंग रिग्स हो, ऑफशोर हो, ऑनशोर हो, माइनिंग हो, स्पेस हो, फार्म हो, एवरीवेयर, इवन एट योर होम, सभी जगह हैज़ार्ड है। और उस हैज़ार्ड से कैसे बचें और कैसे कंट्रोल करें, कैसे एलिमिनेट करें उस हैज़ार्ड को, यही एक सेफ्टी साइंस में इंफॉर्मेशन में मिलता है, और ये काम एक सेफ्टी प्रोफेशनल करते हैं। Safety science helps people understand how something can act as a hazard. People must know how and when the hazard can produce the harm and the best ways to eliminate or reduce the danger. Of course, safety science हेल्प करता है पीपल को कि वो हैज़ार्ड को अच्छी तरह समझे, उसके नेचर को समझे, उसका आउटकम को समझे, उसके इम्पैक्ट को समझे, एंड कितनी प्रोबेबिलिटी है उस हैज़ार्ड की, कितनी सिविरिटी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो एलिमिनेट करें, कितने ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स उसके हार्म्स में हो रहे हैं, कैसे वो होगा, सारी जानकारी एक सेफ्टी साइंस से मिलती है। इफ़ अ हैज़ार्ड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, वी मस्ट नो हाउ टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू द हैज़ार्ड। Safety professionals must know the most cost-effective ways to reduce the risk and how to advise employees, owners, and managers. Of course, एक safety professional advise करता है from top to bottom. Top to bottom means owners को, employer को, then management को, different staffs को, employees को, directly workers को जो involved हैं work में, उन सबको risk के बारे में, hazard के बारे में बताता है before the happening of something wrong, एंड उसे कैसे हम कंट्रोल करें, एलिमिनेट करें, एलिमिनेट नहीं होता तो मिनिमाइज करें, एंड डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स कैसे लगते हैं, ये सारी बातें हम सेफ्टी साइंस में करते हैं बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल। By applying safety science, all of these activities can be effectively carried out. Without safety science, safety professionals rely on guesswork, methodology, and superstitions. Yes, superstitions. तो सेफ्टी साइंस को अगर सेफ्टी प्रोफेशनल के लाइफ से हटा दें, उनके तो उनके चैप्टर्स हटा दें, तो ये जो वर्क है सेफ्टी का बस एक गेस रह जाएगा, मेथोडोलॉजी रह जाएगी, मिथ रहेगा, मेथोडोलॉजी रहेगी या सुपरस्टिशन रहेगा, जो कि एक्चुअली फैक्टफुल नहीं होगा। इसलिए साइंस होना ज़रूरी है। सेफ्टी प्रोफेशनल्स आर मस्ट एक्वायर द एसेंशियल नॉलेज ऑफ सेफ्टी साइंस through the education and experience so that others can rely on their judgment and recommendations. Top safety professionals demonstrate their competence through the professional certification examinations. So of course safety professionals को इस सारी नॉलेज को डेमोस्ट्रेट करना होगा, तभी जाकर दूसरे वर्कर्स हैं या मैनेजमेंट है उन पर वो भरोसा करेंगे, रिलाई करेंगे। एंड एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स को लीड करना है, टीम को आगे बढ़ना, उसे खुद भी अपने करियर को लेकर तो एक सर्टिफिकेशन और इन सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एक स्टेट यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम देकर वो पास किया हो, ना कि किसी ऐसे भी इंस्टीट्यूट से उसने खरीद लिया हो सर्टिफिकेट। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अभी हैं हमारे बीच में, आप जानते होंगे कि जो सिर्फ सेफ्टी सर्टिफिकेट बेचते हैं। शुरू में आपको भी अच्छा लगता है, सेफ्टी सर्टिफिकेट से मिल जाता है, आप कोई भी छोटे मोटे जॉब स्टार्ट कर देते हो, बट जब आप ग्रोथ की बात होती है, बट यही सेफ्टी सर्टिफिकेट आपके आ रहे हैं हाथ आ जाता है, फिर आपको कहता है या तो स्टेट यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर किसी ऑथेंटिकेट यूनिवर्सिटी का। फिर या तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जो अभी आपके पास है थोड़े उसी में चलाएं, गुजारा करें, या फिर आपको जॉब छोड़ के फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। बहुत से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। सो गाइस, आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो सेफ्टी प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, तो अपने सर्टिफिकेट पर स्पेशली खास ध्यान दें। उन इंस्टीट्यूट से बचें जो अपने नाम का सर्टिफिकेट बांट रहे छात्र पर, जिसका 4 रुपये से लेकर 10 रुपये में सर्टिफिकेट बिक जाता है मार्केट में, आराम से प्रिंट हो जाएगा। आपको स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाना पड़ेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी जाकर ये आपका फ्यूचर सिक्योर होगा इस सेफ्टी प्रोफेशन में। Safety professionals help to achieve safety in the workplace by identifying and analyzing hazards which potentially create injury and illness problems. Yes, safety professionals help to achieve safety in the workplace by identifying and analyzing hazard। वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने को, एनालाइज करने को, हैज़ार्ड को इवैल्यूएट करने को, ताकि जो भी पोटेंशियल हैज़ार्ड है जो नुकसान पहुंचा सकता है उससे हम कंट्रोल कर सकें, जो कि आगे इंजरी या इलनेस में डेवलप हो सकता है। और इसको रोकने के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल मेजर है। 5 रिस्क कंट्रोल आप जानते हैं, कम्युनिकेशन सेफ्टी है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन, मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड परफॉर्मिंग फॉलोअप इवैल्यूएशन टू मेजर्स कंट्रोल, कंटिन्यूइंग इंप्रूवमेंट इन प्रोग्राम्स। तो एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स को कंटिन्यू ये सब करते रहना। किसी एक दिन आपने बहुत अच्छा अचीव किया, फिर आप सेटिस्फाइड होने के बाद आपसे फिर से कंट्रोल मेजर्स आप लूज कर देते हो अपनाना, बट ऐसा नहीं है। एक सेफ्टी प्रोफेशनल को रेगुलर हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना है, उसे
इवेलुएट करना, एस्टिमेट करना है, एलिमिनेट करना है, कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना, ये सब रेगुलर प्रोसेस है। एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इस आपने सुना, मैंने आपको बताया कि सेफ्टी प्रोफेशंस होता क्या, व्हाट इज द सेफ्टी प्रोफेशन। सो सेफ्टी प्रोफेशंस is a profession where we get the have the safety science knowledge that can be physics, chemistry, biology, psychology, physiology, medicines, and chemistry, of course. सो बहुत सारी साइंस है जो मिलकर एक सेफ्टी प्रोफेशन को बनाता है, अर्गोनॉमिक्स बनाता है। एंड एक सेफ्टी प्रोफेशन में ये सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से यही एक वजह है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां हैं, रिनोन्ड कंपनियां हैं, वो एज सेफ्टी प्रोफेशनल्स को साइंस बैकग्राउंड या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मांगती हैं। बट किसी एक बैकग्राउंड से, लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री आपका बैकग्राउंड है, या फिर आपने सिविल किया या इलेक्ट्रिकल किया, मैकेनिकल किया, बट उससे आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकती, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कंपनियां जस्टिफाई नहीं करते हैं, जस्टिफाई करती है प्रोफेशनल्स के साथ, सेफ्टी प्रोफेशनल के साथ, जब वो मांगती है सेफ्टी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। क्योंकि अगर आप किसी न किसी कैंडिडेट को आप लेंगे, वो एक ही स्ट्रीम में पास आउट हुआ होगा, या तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके पास जानकारी सिर्फ एक होगी। बट सेफ्टी प्रोफेशनल्स का बहुत, जितनी भी साइंस है सबकी जानकारी होती है, सारे नॉलेज होते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा गाइस कि आप जब भी सेफ्टी प्रोफेशन को चुनें, और आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को चुनें जो स्टेट ऑर्गेनाइज हो, स्टेट ऑथेंटिकेट्स हो, उसकी सर्टिफिकेशन HRD होता हो, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता हो। आप जल्दीबाजी में शॉर्टकट ना अपने, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रोफेशन को चुनने वाले उसमें शॉर्टकट अलाउ नहीं है। शॉर्टकट जिसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपके साथ भी। और बहुत सरप्राइजिंगली ये मुझे बोलना पड़ता है कि आप तो स्लोगन कहते हो साइट पर जाकर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, डू नॉट टेक शॉर्टकट, बट आप खुद शॉर्टकट लेके जाते हो साइट पर, और किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से सिर्फ सर्टिफिकेट खरीदते हो। बट आप उसी तरफ दूसरे इंस्टीट्यूट में आप देखें जहाँ पर रेगुलर 1 ईयर क्लासेस होते हैं, वो स्टूडेंट जो 1 ईयर पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ने के बाद उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, वो नॉलेज बैंक होता है। वो जाके अप्लाई करता है साइट पर, उसका रिजल्ट कुछ और होता है, और आपकी लाइफ भी काफ़ी सिक्योर हो जाती है। तो गाइस, शॉर्टकट, डू नॉट टेक द शॉर्टकट, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द सेफ्टी लॉ ऑल्सो। सो आप दूसरे को तो बताते हो कि डू नॉट टेक दिस शॉर्टकट, बट आप खुद ही सर्टिफिकेशन के लिए और एजुकेशन के लिए शॉर्टकट लेके जाते हो। दिस रियली नॉट गुड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो think about your bright future, not for the certain jobs, because you can get the certain job from any company. They can give you 10,000, 12,000, 14,000, that salary equivalent to the supervisor. So you'll be like a supervisor. If you want to really instructive professionals, so get the education from regular institutes and get the certificate, authenticate certificate. Check out that certificate from the that HRD ministry, and then we'll get the admission. So for the next video, I'm going to make a video and the series of the this video on safety professionals. So guys, wait for my next video. Till then, thank you. Stay safe.